हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे मेडिवल्स वर्ल्ड यानी मध्यकालीन विश्व, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में पढ़ते हो, चाहे 10th में हो, सीबीएसई के हो, चाहे नेशनल बोर्ड के हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जो है मेडिवल्स वर्ल्ड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी मध्यकालीन भारत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर or of civilization during to the medieval period. There is a most important topic here, or of civilization during to the medieval period here. Arabia is the peninsula of desert. Before the founding of Islam, most Arabs were is the Babylonians, that is the wanderings is a camel, Herod's man, and there is a main source of livelihood was the pastoralism and the produce of the desert oases such as dates. Crop protection was the very limited, trade was a slanging, and their urban development is a minimal. That is important here. In the second half of the 6th century, the economical pick up to some momentum due to a shift in a long distant trade of route. There are distant trades of routes here. There was an ongoing war between the two dominant the warring empire of the Avia, namely of the Roman and the Persian. Because of this war, Arabians become a safer transit is a route than other for a caravans is going between to Africa and Asia. And this encouraged their growth of some important towns that took advantage of this trade. The most prominent of this was Makkah, which lay on the junction of some major trade routes here. The Makkah's position also is derived from its local religious importance and the Kaaba. Kaaba as the pilgrim is a sharing was required here. There is the Kaaba as a pilgrim image is a sharing is required here. The Kaaba at that time is served as a center of worship for devoters. Arabian clan of tribes here, and this sharing was controlled by the curious tribes and which play a powerful role in their economic life of Makkah. A valiant civilization arose to the Arabia in the medieval period, which influences of the large section of world population. It often emerged to be the birth of Islam, and which was the significant development in the world history. The next year, society and culture. Arab is a philosopher was based on the study of earlier Greek thought. The Greek philosopher is cultivated by the philosopher who is believed to the rationality. Rationality is important, and this philosopher is apart from there is a philosophical and explications where also it is distinguished in the study of natural science. They practice astrology and medicine. Their astrology was based on the accurate astronomical observations. In a medicine, there is not only study there are medical written of the Greek carefully, but even much of behind that. Ibn Sina
Sina is now there is the best of Avicenna and discovered their infections of nature and tuberculosis and described there are several types of nerves elements here. Ali Raza is now their best. Rajas is one of the greatest clinical physician of medieval world and discovered the difference between two measles and smallpox. Other Arabic physicians also diagnosed a cancer to stomach and prescribe the antidote for cases of poisoning. On the interesting features of about their our people is that their excellence is over all other medieval culture in the organization of hospitals. There seem to be has been at least 34 hospitals located in the important cities of Persia and Syria and Egypt, organized on remarkable model line here. The Arabs also excelled in the optics as the chemist and mathematics also here. And physicist is founded to science of optics and draw a number of significant conclusions regarding the velocity and transmission of reflection of light. In a chemistry, these people are credited with the discovery of various new substances and their compound like a carbonate of soda. Aluminous saltpeter is a nitric and sulfuric acid among their things. There is also they are first to describe their chemical process of distillation, filtration, and sublimation. In a mathematics, the greatest accomplishment of Arab was to bearing together there is a geometry of Greek and number system of the Indians. In fact, the use of Indian number system spread so widely through their Arabs that we have best named them to Arabic numerals. With a synthesis of all this exciting to knowledge, and the Arabs were able to make a great progress in arithmetic, geometric, and trigonometric. And these Indian numerals are even now used all over the world, and they have not now come to be now the European numerals here. Here show the most important number system. European number system is the same. There is an English number system. Arabic index here are the most important. Show you on the screen, and Eastern Arabic index is also important. And the Devanagari Hindi. There is Hindi is the most important in the Indian language. But Tamil is a very different. There is a number system of different state and there is a country. There is the most important of number system. So you need a screen. The Arab civilization was also noted for its literature, particularly of poetry. The Rubaiyat of Omar Khayyam is example of poetry that is remembered that day. Just as ordered field, Arab arts also represented a beautiful synthesis of various styles like the Byzantine and the Persian. Architecture was the most important of the Arabs' art. Example of Arab architectures include mosques, places, and madrasas. There is the most important on the architecture in this period of time. It is a principal feature where domes, minarets, is the arches, etc. are important. In short, it may be said that at the time when the West was lagging far behind, Arab civilization was it is a peak. Is the intellectually there is a artistically here. The establishment of the West as empire through the Arabia into contact with the device is a culture such as the Arabs, Persians, and Turkish, Indian, and African. This device element is to create a splendid society leaving to the behind a legacy of discovery and achievement on this period time. देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है मध्यकाल में अरब सभ्यता। तो मध्यकाल में अरब सभ्यता की क्या विशेषता थी और ये किस प्रकार जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये सारी बातों पर जो है हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकाल में अरब सभ्यता की क्या जो है सिस्टम थी और क्या उसका पोजीशन था। देखिए बात अगर हम करें मध्यकाल में अरब सभ्यता, तो कहते हैं मध्यकाल में अरब में एक शानदार सभ्यता का उदय हुआ। ये बहुत शानदार थी और इसके उदय कारण वहाँ इस्लाम का जन्म होना था, क्योंकि साथ में इस्लाम का भी जन्म हुआ, क्योंकि अरब है और अरब साइड जो इस्लाम का ही
एक गर्व माना जाता है। इसने न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका, भारत समेत ऐसे दूसरे हिस्सों को भी काफ़ी प्रभावित किया। दरअसल इस्लाम का जन्म इस काल की इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि मध्यकालीन विश्व की दास्तान से इस्लाम की कहानी अलग नहीं की जा सकती। आइए इसके बारे में और हम जानने की कोशिश करें कि इस्लाम का जो है जन्म किस प्रकार हुआ और इसका उदय होने का सबसे बड़ा कारण क्या था। इस्लाम की दास्तान अरब ने शुरू होनी चाहिए क्योंकि यही उसका जन्म हुआ है। यानी इस्लाम का दास्तान जो है अरब से शुरू होना चाहिए क्योंकि यही उसका जन्म हुआ। और अरब जो है रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है। अरब जो है कि रेगिस्तानों का प्रायद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज़्यादातर अरब बद्दू जाति के होते थे। बद्दू जाति के उस समय इस्लाम जो होते थे वहाँ पर रहते थे। कहाँ? अरब देश में। अर्थात ये ऊँट पर घूमने वाले चरवाह हुआ करते थे जनरली देखा जाए तो। यानी ऊँट पे घूमने वाले लोग चरवाह हुआ करते थे इस्लाम के उदय से पहले। और वो कौन से जाति की से बिलोंग करते थे? बद्दू जाति से बिलोंग करते थे। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो होता था उस समय पशुपालन और नखलिस्तानों में उगने वाले खजूर। तो ये उनका प्रमुख जो है भोजन का स्रोत होते थे। पशुपालन और नखलिस्तानों में जो खजूर लगती थी वो उनका मुख्य भोजन था। कहते हैं शिल्प उत्पादन काफ़ी सीमित था और व्यापार भी उनकी बहुत धीमी होती थी। और शहरीकरण तो देखा जाए बहुत ही कम था। यानी शहरीकरण उस समय बिल्कुल न के बराबर ही हुआ करता था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंबी दूरी का व्यापार करने वाले कारवाओं के दास्तानों में परिवर्तन के बाद अरब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई। यानी बाद में जब 6वीं शताब्दी के आसपास ये आए तो उन्होंने जो है कारवा के रूप में जो है यहाँ से वहाँ घूमने लगे, जिससे जो है वो व्यापार करने में हर क्षेत्र में सक्षम हुए। अरब के दो पड़ोसी साम्राज्य रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग सदैव छिड़ी रहती थी। देखिए अरब दो पड़ोसी राज्यों थे, उसमें रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग हमेशा लगी रहती थी। और इन जंगों के कारण जो है अरब, अफ्रीका और एशिया बीच व्यापार के लिए आने जाने वाले कारवाओं को सुरक्षित रास्ता बन गया। इससे कुछ महत्वपूर्ण शहरों का विकास को भी काफ़ी बढ़ावा मिला उस समय और उन्होंने उसका फ़ायदा भी बखूबी उठाया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शहर था मक्का। यानी मक्का जो था उस समय व्यापार के लिए बहुत ही मशहूर था, जो कुछ प्रमुख व्यापारी मार्गों के लिए संधि स्थल पर था। यानी संधि स्थल का मतलब होता है जंक्शन, जहाँ पर हर जो है मिलता है आपस में आके। कारवा के कारण मक्का को एक स्थानीय धार्मिक महत्व हासिल था और इसी कारण भी वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। उस समय काबा अरब के विभिन्न कबीलों के लिए एक पूजनीय स्थल बन गया और इस धर्म स्थल पर जो है कुरैशल कबीलों का नियंत्रण था। कुरैश कबीले का नियंत्रण होना उसमें बहुत ज़रूरी था, जो मक्का के आर्थिक जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभा रहा था। यानी जो है धर्मस्थल में कुरैशी कबीलों का होना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मक्का के आर्थिक जीवन में शक्तिशाली भूमिका इन्हीं की थी। इस्लाम के जो है स्थापक हज़रत मोहम्मद का जन्म करीब जो है 570 ईस्वी में कुरैली कबीले में ही हुआ था। हज़रत मोहम्मद का जो जन्म है 570 ईस्वी में कुरैशी कबीले में हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हज़रत मोहम्मद के माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और उनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी, जो कि जरूर इम्पोर्टेंट बात है। यानी हज़रत मोहम्मद का जो है पिता का निधन हो गया, माता पिता का, तो उनके चाचा ने ही उनका परवरिश किया। बड़े होकर वो जो है खुशहाल सौदागर बन गए। उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया। बाद में उन्होंने खदीजा से शादी भी कर ली और करीब 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद एक धार्मिक अनुभूति से गुजरे, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई भगवान नहीं है। और उस समय अरब अनेक देवी देवताओं को पूजा करते थे और अल्लाह को उनमें से एक है, लेकिन उनसे थोड़ा ऊंचा और शक्तिशाली माना जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। हज़रत मोहम्मद के जो है अलौकिक अनुभव के कारण इस जो है बहु ईश्वरवाद या अनेक देवी देवताओं पर आस्था की जगह एकेश्वरवाद ने ले ली। यानी अब जो पहले के समय में वहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी, जब हज़रत मोहम्मद की जो है लौकिक अनुभव के बाद वहाँ पर सिर्फ एक ईश्वरवाद ही
जन्म ले लिया, यानी लोग एक ही ईश्वर को मानने लग गए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद को और भी आकाशी संदेश आए जो उनके नए धर्म के आधार बने। नया धर्म इस्लाम के नाम से जाना गया और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर माने गए। शुरू में वह जो है कुरैश के ज़्यादा लोगों को नए धर्म में शामिल करने में सफल नहीं रहे। उनकी पत्नी समेत कुछ ही लोगों ने नया धर्म स्वीकार भी किया। इसी बीच उत्तर में एक दूसरे शहर यसरीब के जो है प्रतिनिधियों ने हज़रत मोहम्मद को अपने यहाँ आने और वहाँ के विवाद सुलझाने का न्योता भी दिया और 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ यसरीब चले गए। इसे हिजरत कहते हैं। हिजरत के साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल माना जाता है और हज़रत मोहम्मद ने इस शहर का नाम मदीना रखा और वह वहाँ के शासक बनने में भी सफल रहे। अब उन्होंने जो है सचेत रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को एक राजनीतिक और धार्मिक समुदायों में संगठित करना शुरू कर दिया। मक्का में इस्लाम को फैलाने के लिए वह और उनके अनुयायियों ने कुरैश के काफिलों पर हमला करना शुरू कर दिया और हज़रत मोहम्मद अंततः 630 ईस्वी में सफल रहे और कुरैश के परास्त कर मक्का में प्रवेश किया और कुरैश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया और इसके बाद से काबा जो है इस्लाम का प्रमुख धर्मस्थल बन गया। मक्का विजय के बाद समूचे अरब को विभिन्न कबीलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे समक्ष जो काफ़ी महत्वपूर्ण आया है अंक प्रणाली। कहते हैं अंक प्रणाली देखें तो हर क्षेत्र में जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप को दिख रहा होगा। यूरोपियन में इंग्लिश की तरह ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा होगा। अरबिक इंडिक्स में थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। जो अरबी इंडिक्स पढ़े होंगे उनको ये समझ में बेखूबी आ सकता है। और ईस्टर्न अरबिक इंडिया से पेरिसन एंड उर्दू काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उर्दू के भी आप शब्द यहाँ पर देख सकते हो। 1 2 से लेके 10 से लेके 9 तक यहाँ पर अंकित है। और आपका जो हिंदी है देवनागरी उसको भी आप भली भांति देख सकते हो इसके अंक प्रणाली की। कहते हैं तमिल को भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसकी भी जो अंक प्रणाली है कुछ खास जो है महत्वपूर्ण अंकों को यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो ये बताती है कि हर क्षेत्र में जो है अंक प्रणाली डिफरेंट प्रणाली को यहाँ पर जो है प्रस्तुत की गई है। कहते हैं इस्लाम की शिक्षा जो है सीधी सादी है। बात अगर हम इस्लाम की करें तो यहाँ पर देखा जाए तो इस्लाम की शिक्षा जो है बहुत सीधी सादी है। इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण होता है। यानी इस्लाम शब्द का अर्थ ही हुआ कि धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष जो है संपूर्ण समर्पण। इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाए। इस्लाम के अनुयायी ईश्वर एक है, ये उनका मानना था। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक ही है। मुसलमान हज़रत मोहम्मद को आखिरी और महानतम पैगंबर मानते हैं। वो यहूदियों और जो है ईसाइयों के पैगंबर को भी मान्यता देते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुसलमान मानते हैं कि क़यामत या महाप्रलय आएगा और नेक अथवा अच्छे लोगों को जो जन्नत में सशक्त जीवन मिलेगा, जबकि दुष्ट और पापी लोगों को जो है जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए झुलसना होगा। ये उनकी विचारधारा है। नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा, जो मुसलमानों को पवित्र ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो कुरान जो है मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है और कुरान के ही बनाए गए रूल रेगुलेशन में उनको चलना पड़ेगा। कुरान को उन्हें संदेशों का आकलन माना जाता है जो हज़रत मोहम्मद को ईश्वर से मिले थे, और इस कदमों में सदाचार और दया करुणा का जीवन बिताना, निश्चित समय पर नमाज और रोज़ा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा करना, कुरान का पाठ करना शामिल था। कहते हैं कुरान के अतिरिक्त मुसलमान को जो है सुन्नत और हज़रत मोहम्मद के वचनों और आदर्शों के हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना भी होगा। ये भी बात प्रावधान थी। इस्लाम में जो है अल्लाह को वचनों और आदर्शों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस्लाम में अल्लाह और इंसान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं है। वहाँ पुरोहित नहीं है, बस धार्मिक विद्वान या आलिम ही है जो धर्म और जो है धार्मिक कानून पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस्लाम तमाम लोगों को जो है बराबर की शिक्षा देता है।
उसूल के मामले में यहूदी और ईसाई धर्म के साथ इस्लाम की बड़ी समानता देखे जा सकते हैं। अब हमारे पास इसकी हल्की फुल्की समझ बन गई है कि हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे की और उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। लेकिन अरब के दूर दराज इलाकों में शुरू हुआ ये सीधा साधा धर्म कैसे एक विश्वव्यापी परिवर्तन बन गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे समक्ष आता है इस्लाम का प्रसार। देखिए, हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में अरबों में कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। वास्तव में इस नवजात धार्मिक समुदाय के बिगड़ने का खतरा पैदा हो भी गया था, लेकिन हज़रत मोहम्मद के कुछ निकटतम अनुयायियों ने उनके ससुर अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुनकर उसे इस खतरे से उबार लिया। उसके बाद से एक लंबे काल तक खलीफा के तमाम मुसलमानों का सुरक्षा धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। खलीफा बनने के तुरंत बाद अबू बकर ने उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू कर दिया जिन्होंने हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्राधिकार मानने से इनकार कर दिया था, और यह एक सैनिक अभियान बेहद सफल भी रहा और इससे उनके बाद की दिशा और अरब की सीमाओं के आगे भी बढ़ाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें इन सैनिक अभियानों में बेजतियों और फारसी जैसे शक्तिशाली साम्राज्य की ओर से बेहद कम प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, जो कि जरूरी था। अबू बकर के निधन के बाद उमर खलीफा बने, यानी देखा जाए तो अबू बकर के निधन के बाद जो है उमर खलीफा बने। उमर ने पड़ोसियों के साम्राज्यों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। अरब सेना को लगातार सफलता मिलती गई और जल्द ही अरबों ने पूरे सीरिया पर और एथियोप, दमिश्क और तथा यरूशलेम के प्रमुख शहरों पर कब्जा भी जमा लिया। उन्होंने फारस की सेना को परास्त कर दिया और 651 ईस्वी तक समूचे फारस पर जो अरबों का कब्जा हो चुका था। अरब बैजंतिया साम्राज्य को जो है मिस्र छीनने में भी कामयाब रहे। इसके बाद वह पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़े। यहाँ से वह 711 ईस्वी में स्पेन में घुसे। उन्होंने लगभग समूचे स्पेन को जीत भी लिया था और इस तरह एक सदी से कम समय में इस्लाम ने प्राचीन जो है फारस को पूरी और पुराने रोमन जगत ज़्यादातर हिस्सा जीत लिया। इतिहासकारों ने अक्सर अरबों की इस जीत के पीछे के कारणों का आश्चर्य जताया है। कुछ मानते हैं कि यह जो मजहबी जोश और इस्लाम के प्रसार की धुन थी जिसमें अरबों को प्रेरित भी किया, लेकिन अब एक अधिकाधिक इतिहासकारों की दलील है कि जहां धर्म ने अरबों का जो एकात्मवाद रखने में भूमिका निभाई, वहीं जिस चीज़ ने उन्हें रेगिस्तान से निकाल कर बारे में यानी जो रेगिस्तानों से निकाल कर बारे जाने के लिए वास्तव में प्रेरित भी किया, वो वास्तव में समृद्ध क्षेत्र और मालय गणितम यानी युद्धों में लूटी गई दौलत था। बैजंतिया और फारस जैसे इसके दुश्मनों की कमजोरी ने भी अरब को काफ़ी मदद की। उमर के बाद उस्मान खलीफा बने, लेकिन उस्मान मजबूत नेता नहीं थे। उनके अनेक विरोधियों भी थे। उनकी हत्या भी कर दी गई और पैगंबर के चचेरे भाई एवं दामाद अली और खलीफा बनाया गया, लेकिन जल्द ही अली की भी हत्या कर दी गई और उस्मान को समर्थक जो है प्रभुताशाली पक्ष बनकर उभरे। उसके बाद से मुसलमानों में दरार है और अली और जो है अनुयायियों ने एक अलग पंथ बना लिया, शिया कहलाए, और ये बना के जो है शिया कहलाए, बाकी मुसलमान सुन्नी कहलाए। यानी ये भी जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। अली की मृत्यु के बाद उमैया परिवार के एक सदस्य ने खिलाफत संभाल ली और उस्मान इसी परिवार के ही थे। उमैया वंश में 950 ईस्वी तक शासन करता रहा। कहते बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी पर अब जबरदस्त हमले में असफलता के बाद उनकी ताकत कमज़ोर पड़ गई। उमैया वंश के पतन के बाद अब्बासियों ने सत्ता संभाल ली, जहां उमैया ने जो है अपनी ताकत जो है सीरिया में केंद्रित भी कर ली। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बदलकर फारसी राजधानी के पास इराक में बगदाद को बनाया। फारसी क्षेत्र में राजधानी के स्थानांतरण के साथ ही अब्बासियों शासन में फारसी तत्वों को प्रमुखता मिली।
इस शासन के दौरान शुरुआती इस्लाम के जो है समानता और भाईचारे की असूली और समाप्ति हो गई। उसकी जगह जो है निरंकुश राजशाही ने ले ली और अनेक भव्य दरबार में जो है बड़ा ही तामझाम था। दरबार की ये शान शौकत और फ़ायदे कानून फारस की परंपराओं के उधार लिए गए थे। आवाज़ शिक्षा और साहित्य के बड़े ही संरक्षक हुआ करते थे और कहते हैं 10वीं सदी में अवासी जो सत्ता कमज़ोर पड़ने लग गई थी और उसके बाद भी केंद्रीकरण का एक विस्तृत दौर रहा। मंगोलों ने जो है 1258 में बगदाद को नष्ट कर दिया, यानी 12वीं शताब्दी में जो है बगदाद को नष्ट कर दिया और अराजकता का यह दौर तब तक जारी रहा जब तक कि सल्जूक तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा नहीं कर लिया। इसे मुस्लिम साम्राज्य पर अरब शासन समाप्त कर दिया और बाद की जो है सदियों में इस्लामी जगत पर तुर्कों का दबदबा रहा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इस्लामी साम्राज्य के विकास क्रम को रेखांकित किया कि कैसे यह कुछ एक लोगों की आस्था से विकसित हुए और किस प्रकार जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक पहुंच पाए। कैसे इस विकास ने लोगों को सामाजिक संस्कृति जीवन को काफ़ी प्रभावित किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस्लामी सभ्यता की संस्कृति और वैदिक उपलब्धियों की। इस्लामी सभ्यता ने किस प्रकार जो है अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त की। यह कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद के समय से लेकर करीब 1500 ईसा तक इस्लामी संस्कृति और समाज उल्लेखनीय रूप से जो है संवेदनशील और गतिशील रहे और वो विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए और उनकी विशेषताओं को ग्रहण भी कर लिया। इस्लामी संस्कृति ने उनके आदर्श अपनाकर खुद को जो है समृद्ध कर लिया और इस काल में इस्लामी संस्कृति दूसरे धर्मों के प्रति उल्लेखनीय रूप से जो है सहिष्णुता थी। उसने अपने समाजी ढांचों में और यहाँ तक कि प्रशासन में भी यहूदियों और ईसाइयों को जगह दी। उन्होंने यहूदियों और ईसाई जो है कवियों को भी संरक्षण दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। धर्म के क्षेत्र में मुख्यतः 2 किस्म के लोग थे, उलेमा और सूफी। उस समय उलेमा और सूफी काफ़ी मशहूर थे। उलेमा विद्वान लोग थे और धर्म तथा धार्मिक कानून के तमाम पहलुओं पर सलाह दिया करते थे और वो आमतौर पर परंपरा का ही पालन किया करते थे। सूफी धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर सलाह दिया करते थे, वे आमतौर पर परंपरा का पालन करते थे। सूफी धार्मिक रहस्यवादी थे जो मुख्यतः ध्यान और इरहाद पर जोर देते थे। सूफी आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी को गहराई से छूने में सफल रहते थे। खासकर अब्बासी शासनकाल में इस्लामी विद्या की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट पर पहुंच गई थी। दर्शन उसमें से एक था। इस्लामी दर्शन पुराने यूनानी दर्शन के अध्ययन पर आधारित था। बुद्धिवाद और विवेकशीलता में यकीन रखने वाले मुस्लिम दर्शकों को एक तबके ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया और यह दार्शनिक दर्शन के क्षेत्र में चिंतन मनन के अलावा प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में भी अग्रणीय थे। उन्होंने खगोलीय शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में खासा काम किया। उनका ज्योतिष शास्त्र खगोलीय गणना पर आधारित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने यूनानी के लेखकों का न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि उसे बहुत आगे तक ले भी गए। पश्चिम में देखा जाए तब सीना के नाम से मशहूर इब्न सीना के तपेदिक और संक्रामक प्रकृति की खोज भी हुई। उन्होंने जैसना तंत्र की अनेकों बीमारियों का जिक्र भी किया। कहते हैं बहुत से उस समय बीमारी भी फैल रही थी। पश्चिम में राजेश के नाम से मशहूर अल राजी मध्यकालीन विश्व के महानतम नैदानिक चिकित्सक यानी क्लिनिकल फिजिशियन थे। उन्होंने खासरा और चेचक के फ़र्क खोजा और दूसरे इस्लामी चिकित्सक ने अमाशय के कैंसर का भी निदान किया। जहर की काट खोजी गई और आँख की बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय उस समय योगदान किया गया। मुस्लिम समाज की एक रोचक व्यवस्था यह थी कि अस्पताल के स्थापना और संगठन में वे दूसरे तमाम मध्यकालीन संस्कृति से आगे चले गए और फारस, सीरिया और मिस्र के महत्वपूर्ण शहरों में आधुनिक पद्धति पर संगठित कम से कम जो है 34 अस्पताल थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
उन्होंने प्रकाश विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित में भी बहुत उपलब्धियां हासिल की। इस्लामी कहते भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश विज्ञान की नींव भी रखी और कहते प्रकाश गति, प्रसरण और प्रवर्धन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले गए। रसायन शास्त्र में क्षेत्र में अन्य चीज़ों के अलावा सोडा के कार्बनिक और फिटकरी और सोडा नमक के तेजाब और नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों को और रासायनिक खोज के लिए हम उनके आभारी हैं। यानी देखा जाए तो उसमें रसायन शास्त्र में बहुत सी चीज़ों की खोज हुई। कहते हैं जैसे सोडा के कार्बोनेट, फिटकरी, सोडा, नमक के तेजाब, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों की उस समय खोज हुई। गणित के क्षेत्र में इस्लामी विद्वानों की महानतम और उपलब्धियां यूनानी के रेखा गणित और भारतीय की अंक प्रणाली का एक जगह करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। वास्तव में भारतीय अंक प्रणाली का इस्तेमाल इतने व्यापक रूप से फैला कि पश्चिम ने उन्हें अरब अंक का नाम दे दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस तरह उस समय जो है मौजूदा विद्या का संश्लेषण कर अरबों ने अंक गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति क्षेत्र में महान प्रगति हासिल की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के दौरान। देखा जाए तो अरब सभ्यता अपने साहित्य, खासकर कविता के लिए भी काफ़ी मशहूर हो गए। उमर ख़याम की रुबाइयाँ और इसकी एक मिसाल है जिसे आज भी याद किया जाता है। अन्य क्षेत्रों की तरह इस्लामी कला भी जो है बैज़ंतिया, ईरानी इत्यादि विभिन्न शैलियों का सुंदर और शानदार संश्लेषण था। इस्लामी काल में वास्तुशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण थी और इस्लामी वास्तुशास्त्र के उदाहरणों में मस्जिद, महल, स्कूल और पुस्तकालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये सारे इस्लामी वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और इसके मुख्य विशेषताओं में गुंबद देखा जाए, मीनार, मेहराब इत्यादि शामिल थे, जो कि और भी महत्वपूर्ण थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऐसे समय जब पश्चिम बहुत पिछड़ा हुआ था, इस्लामी सभ्यता वैदिक और कलात्मक स्तर पर अपनी जो बुलंदियों पर थी। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ने अरबों को जो विविध संस्कृतियों के संपर्क में लाया और इसने अरब, फारसी, तुर्क और भारतीय और अफ्रीकी जैसे विविध समुदायों को एक साथ लाने और विविध तत्वों वाले एक शानदार समाज का निर्माण में मदद की और इसे अपने पीछे मौलिक खोज और उपलब्धियों को एक शानदार विरासत छोड़ दी। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था अरबों की विकास के लिए, इस्लामी धर्म सभ्यता का विकास के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसमें हर एक पहलू पे हमने जो है इस्लामी धर्म के बारे में बात किया, चर्चा किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दोस्तों अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप अपना कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है अधिकार है। कहते हैं जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती ही होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पता ही है कि तिरपान सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। तो आपको हर वीडियो जो है इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर आपके चैप्टर वाइज देख सकते हो, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, हर तरह का प्रावधान वहां पर मौजूद है। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ कॉमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो इसके लिए भी प्रावधान है, आप जो है कॉमेंट कर सकते हो।